Good morning everyone. I hope you all are doing fine. We completed question number 7th of exercise 1.4 and today we will be doing question number 8. What does question number 8 say? Question number 8 says that find the estimated product by rounding off to nearest 100. हमें estimated product निकालना है by rounding off to nearest 100. First is 342 multiplied by 102. नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करने के लिए क्या देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स. ये 42 है, 42 इज लेस देन 50, सो दिस विल बिकम 300 एंड दिस विल बिकम 100 बिकॉज द लास्ट 2 डिजिट्स आर 0 2. 2 is less than 50, so we will multiply 300 into 100 and we will get 30,000 as our answer. Next one. 3,209 multiplied by 237. अगेन लास्ट 2 डिजिट्स देखिए तो ये क्या बन जाएगा 3200 और यहाँ पर 37 है विच इज लेस देन 50, सो दिस विल बिकम 200. सो योर आंसर विल बी 64,000. थर्ड वन 5610 multiplied by 225. Again last 2 digits देखो, last 2 digits are less than 50, so this will become 5600 and this will become 200. 5600 को 200 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे, 56 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा 112 और यहाँ पे कितने जीरो है 2 और यहाँ पे 0 है तो 4 जीरो यहाँ पे लगा दो. और फिर हमने सिस्टम पढ़ा था इंडियन वाला, तो उससे हम यहाँ पे कॉमर्स प्लेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 11,20,000. नेक्स्ट वन 3492 multiplied by 316. Again you will look after last 2 digits. Now here the last 2 digits are 92, which means this will become 3500 and this will become 300. So 35 into 3 मल्टीप्लाई करके देखो 35 3 से कितना आएगा, 35 3 से आएगा 105 and these 4 zeros. So your answer will be 10,50,000. Moving forward to question number 9. Find the estimated quotient by rounding off to nearest 100. अभी हमने क्या किया था, प्रोडक्ट निकाला था. अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. Question number 9. First one is 2804 divided by 154. 2800 किसमें, 2804 किसमें कन्वर्ट होगा, राउंड ऑफ होगा 2800 में, क्योंकि हम नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ कर रहे हैं और ये 54 है तो ये कैस में राउंड ऑफ हो जाएगा 200 में. अब हमें क्या करना है, डिवाइड. 2800 डिवाइडेड बाय 200. जीरो से जीरोस कैंसिल आउट, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 4s are 8. So your answer is 14. So your quotient will be 14. Fine. Next one. 35,479 divided by 521. Again what we will do, we will look after the last 2 digits. This will transform into 35,500 divided by 500. ठीक. So 35,500 को डिवाइड करो 500 से, जीरो से जीरोस कैंसिल आउट, 5 7s are 35, 5 1s are 5. So your quotient is 71. Next, third one 66,610 divided by 612. ये क्या बन जाएगा, last 2 digits are 10, so this will become 66,600 and this will become 600. So we'll divide 66,600 by
600. Zero से zeros cancel out. 6 1 the 6. 6 1 the 6. 6 1 the 6. 6 1 the 6. So your quotient is 111. Next one. 36,09,234 divided by 4,512. राउंड ऑफ कीजिए लास्ट 2 डिजिट्स देखकर. दिस इज 36,09,200 divided by 4,500. So this will become 36,09,200 divided by 4,500. जीरो से जीरोस कैंसिल आउट. पहले 3 से कट करते हैं. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 है. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 एज इट इज. 3 3 जा 9. अब यहाँ पे क्या है? 2 है. 2 तो जाएगा नहीं, तो इस यहाँ पे 0 लिखेंगे. फिर 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 एंड सो ऑन. ये चलता रहेगा. नाउ वापस 3 से कैंसिल आउट करते हैं. 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 0, 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6. नाउ 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, यहाँ पे 0 आ जाएगा. 5 2 जा 10, फिर यहाँ पे 0 आएगा. 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20. So your answer will come out as 820.044, जिसे अप्रोक्सीमेटली आप 820 भी लिख सकते हैं. अगर डेसिमल में बहुत छोटा नंबर आ रहा है तो आप उसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. बाकी करेक्ट आंसर इज दिस वन. फाइन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. What does question number 10 say? Sonu added 278343 and 1035 and got a sum as 1656. Using the method of estimation, find whether the sum appears to be sensible or not. सोनू ने क्या ऐड किया? 278343. This is question number 10. Sonu added 278343 and 1035 and 1035 को इसने क्या किया है? Add. Using the method of estimation, find whether the sum appears to be sensible or not. देखो सोनू ने इसे और इसे ऐड किया है. Using estimation by nearest 10 से एस्टिमेट करके देखते हैं कि जो सोनू का सम आया है which is 1656, ये सही है या नहीं है. नियरेस्ट 10 से एस्टिमेट करेंगे तो लास्ट डिजिट देखेंगे तो दिस विल बिकम 278340 प्लस 1040. ऐड करो 278340 एंड 1040. 0 4 and 4 8 3 9 7 2. कितना बना? 279380. क्या इसके कहीं आसपास भी है? नहीं है. कोई बात नहीं, हम नियरेस्ट 100 में एस्टिमेट करके देखते हैं. यूजिंग एस्टिमेशन बाय नियरेस्ट 100. नियरेस्ट 100 में एस्टिमेट करके देखो. लास्ट 2 डिजिट्स देखोगे ये बनेगा 278300 प्लस 1000. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 27930. क्यों? ऐड करके देख लो. 278300 प्लस 1000 कितना बनता है? 003972. 279300. क्या ये 1656 के कहीं भी आसपास भी है? नहीं. सो दिस डज नॉट मेक्स सेंस.
Now, using estimation by नियरेस्ट 1000 से एस्टिमेट करके देखते हैं। नियरेस्ट 1000 से एस्टिमेट करने में कितने डिजिट्स दिखते हैं? लास्ट के 3 डिजिट्स। लास्ट के 3 डिजिट्स यहाँ पे 500 से कम है तो ये बन जाएगा 278,000 प्लस 1000, तो ये कितना बन जाएगा? 279,000। क्या ये 1656 के कहीं भी आसपास है? नहीं है। Now we will do the last estimation, which is using estimation by nearest 10,000। 10,000 से एस्टिमेट करते हैं हम, तो लास्ट के कितने डिजिट्स देखते हैं? 4 डिजिट देखते हैं। यहाँ पे लास्ट के 4 डिजिट्स आर greater than 5,000, so this will become 28,000 fine, plus यहाँ पे लास्ट के 4 डिजिट्स आर लेस देन 5,000, तो इसको हम क्या लेंगे? इससे पहले वाला 1000 क्या हो जाएगा? 0, तो आंसर आ गया 28,000। इज दिस 280,000 Is this anywhere close to 1656? No. So Sonu, when added 278,343 and 1035 and got the sum as 1656, does not make sense. Therefore, the sum does not make sense. डज नॉट मेक सेंस मतलब कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप इतने बड़ी क्वांटिटी में 1035 ऐड कर रहे हो तो 1656 कैसे आ सकता है? मतलब 1035 तो यही है और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, तो इसमें इतना बड़ा नंबर ऐड करके 1656 तो नहीं आ सकता। ठीक, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 11। On a particular day, a trader received 23,345 from one source and 37,679 from other source. एक दिन एक ट्रेडर था, उसको कितने रुपए मिले? 23,345 एक सोर्स से मिले एंड 37,679 दूसरे सोर्स से मिले। In the evening, he is to pay 60,000 to someone. शाम में उसे 60,000 रुपीज किसी और को देने हैं। By the method of estimation, find whether he has enough money to make the payment or not. ठीक है, money received by the trader from both the sources, दोनों सोर्सेस से उसे कितना कितना पैसा मिला ये हम लिख लेते हैं। 23,345 प्लस 37,679। हम क्या करते हैं, इसे एस्टिमेट कर देते हैं टू नियरेस्ट 1000 में। नियरेस्ट 1000 में एस्टिमेट करके देख लेते हैं कि क्या उसके पास इनफ मनी है टू पे इन द इवनिंग। When we'll estimate it to nearest 1000, we'll look after the last 3 digits. This is less than 500, so this will become 23,000, and this will become 38,000. Why? Because this is more than 500. 1000 as it is 8 and 3 11. 2 and 3 5 and 1 6. So trader received 61,000 from both the sources approximately, and approximately मतलब लगभग, and
money trader has to give in the evening. शाम में उसे कितने पैसे देने हैं? 60,000. So क्या आपको लगता है he has enough money to pay in the evening? Of course, yes. The trader has enough money to pay in the evening. Why? Because he now has 61,000 rupees and he has to pay only 60,000 rupees. Therefore, yes, the trader has enough money to pay. Fine. Now, moving forward to exercise 1.5. क्या कर रहे हैं हम? एक्सरसाइज 1.5 करेंगे. एक्सरसाइज 1.5 में क्या है? सिंप्लीफिकेशन. ठीक, सिंप्लीफिकेशन कब में हमें क्या रूल याद रखना होता है? BODMAS का. BODMAS. What is BODMAS? B for bracket, O for of, D for division, M for multiplication, A for addition, and S for subtraction. जब भी आपको कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया जाएगा तो अगर उसमें ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. कैसे करेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड बाय सॉल्विंग द क्वेश्चंस. फर्स्ट वन, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. 20 into 10 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 10. ठीक, क्या करना है? पहले मल्टीप्लिकेशन करना है. मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? डिवीजन. ये डिवीजन 70 डिवाइडेड बाय 10, इसको ब्रैकेट में डाल लो. 70 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा? 7. ठीक, मल्टीप्लिकेशन 20 into 10 कितना बनेगा? 200. तो ये कितना हो गया? 200 प्लस 7 विच इज 207. फाइन. नेक्स्ट वन, 13 minus 10 into 9 plus 8. 13 minus 10 into 9 plus 8. सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और एडिशन हो रहा है. सबसे पहले हमें यहाँ पे किसको प्रायोरिटी देनी है? मल्टीप्लिकेशन को. 10 into 9 कर लो, कितना आएगा? 10 into 9 is 90. ठीक, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या करना है? एडिशन. सो 13 अब यहाँ पे ऐड किस किस को कर सकते हैं? 13 प्लस 8. 13 प्लस 8 कितना बनेगा? 8 and 1 11, 21 माइनस 90. 21 में से 90 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 69. माइनस क्यों? क्योंकि माइनस वाला जो नंबर है वो बड़ा है, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन किसका आता है? बड़े वाले नंबर का. थर्ड वन, 40 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. अब देखो सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देनी है? डिवीजन को. तो 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 8 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या आया? 4. अब क्या करना है? डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन. सो 4 into 3 is 12. So your answer is 52. आंसर क्या बनेगा? 40 plus 12 52. नेक्स्ट वन, 18 divided by 3 multiplied by 10 plus 11 minus 4. अब देखो सबसे पहले हमें डिवीजन करना होता है. तो 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 6 18 होता है. लिख लो, ऐसे लिख लो, फिर सॉल्व कर लो. 3 6 18. So this is 6 into 10 plus 11 minus 4. 6 into 10 is
60 plus 11 minus 4. This is 71 minus 4. कितना आएगा? 67. Fine. Now moving forward to next part. Fifth part. 15 minus 12 divided by 6 plus 0.3 into 2. सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. 15 minus 12 by 6 plus 0.3 into 2. 6 2 is 12. 15 minus 2. आप क्या करोगे? मल्टीप्लीकेशन 0.3 into 6 0.6. तो ये कितना बना? 13 plus 0.6 which is 13.6. 13.6 कैसे लिखा? डेसिमल से पहले वाला नंबर डेसिमल के पहले वाले नंबर में ऐड होता है और डेसिमल के बाद वाला नंबर डेसिमल के बाद वाले नंबर पे ऐड होता है और डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती. 6 56 divided by 8 into 4 plus 10 minus 9. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट ऑफ. तो हम ब्रैकेट हटाएंगे सबसे पहले. तो 8 4 से कितना होगा? 32 plus 10 minus 9. 56 divided by 32 plus 10 minus 9. करो 56 को 32 से डिवाइड. 8 4 से 32, 8 7 जा 56. तो आंसर है 7/4 प्लस 10 minus 9 कितना होता है? 1. एलसीएम लो 4 7 plus 4. ये कितना बना? 11/4. मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 4 2 जा 8. कितना बचा? 3. So your answer will be 2 3/4. कैसे? 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 10 11. तो आंसर क्या आ गया? 2 3/4. नेक्स्ट वन. सेवेंथ क्या बोल रहा है? 24 डिवाइडेड बाय 4 minus 1 plus 2 into 8. अगेन सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करो. ब्रैकेट वाले को सॉल्व करो. 4 minus 1 is 3 plus 2 into 8. 3 8 are 24. 8 plus 2 8 are 16. आंसर कितना आ जाएगा? 24. 16 plus 8 is 24. नेक्स्ट 8th पार्ट क्या कह रहा है? 12 minus 2 into 5 into 5 minus 18 plus 10. सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो. 12 minus 2 into 5 into 5 25 minus 18 plus 10. फिर क्या सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लीकेशन. 2 into 25 50 minus 18 plus 10. आप ऐड होने वालों को ऐड कर लेते हो. 12 plus 10 22. माइनस क्या हो रहा है? -50 minus 18 कितना बनेगा? 50 और 18 68. 22 में से 68 माइनस कीजिए. कितना आएगा? 6 46. 22 minus 68 is -46. नेक्स्ट 9th पार्ट. -9 into 8 plus 3 plus 5. Again, first you will do bracket of 8 plus 3 is 11 plus 5. Then you will solve multiplication. 99 plus 5. फिर ऐड करोगे 10 plus 5 15 minus 99.
9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8. So your answer is minus 84. And the last question, 90 minus 7 minus 3 divided by 2 plus 20. अब देखो ये तो ब्रैकेट के अंदर भी अलग एक्सप्रेशन है. तो 90 माइनस, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है. 7 माइनस 3 बाय 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस 20. सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट 90 माइनस एलसीएम लिया, एलसीएम है 2, 7 2 14 माइनस 3 प्लस 20. ये कितना बन जाएगा, 90 माइनस 14 माइनस 3 इज 11 बाय 2 प्लस 20. 90 प्लस 20 कितना बनेगा, 110. ये इसका पार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पे. 110 माइनस 11 बाय 2, एलसीएम लो 2, 220 माइनस 11. 220 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 209 डिवाइडेड बाय 2. मिक्स फ्रैक्शन में निकालो कितना आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में निकालोगे तो योर आंसर विल बी 1041 बाय 2. कैसे आया इधर देख लो. 209 को तुमने 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 0 as it is, 2 4 जा 8, बचा 1. So your answer is 1041 by 2. So today we have completed exercise 1.4 and exercise 1.5. So now what you have to do in homework, you have to revise classwork, you have to make notes, and you have to do examples. 1.5 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे एग्जाम्पल्स आप क्या करोगे, कंप्लीट. I think whatever I've taught you is clear. That's it for today's class. Thank you and have a nice day.